रेगो बी के सॉन्ग लॉन्च पर सुनील शेट्टी और राजपाल यादव ने की बात। अब क्या बोलना, आप लोगों ने देख ही लिया. I think he's immensely talented. You know, the legendary, his grandfather, the whole lineage is so strong कि आप imagine भी नहीं कर सकते. मामा हो, granddad हो, सब इतने talented. So God bless you, बेटा. I've heard him live, you know, in a personal. हम जब dinner पे थे एक दिन, तो हमने सब चढ़ाया था रेगो को लंदन में कि you know sing. एंड ऐसा कोई जॉनर नहीं है जो गा नहीं पाता, विच इज़ अनबिलीवेबल. एंड एट दिस एज 13 साल का है, but he's a rock star. He's truly a rock star. All my blessings, all my love to you, and I know you're going to kill it. And you know, the wonderful family that you come for, the love that you'll get, the love that you'll give, is what makes someone a star inside out. You know, and I think that you're blessed to have parents like this who are so loving, so caring. So wish you the very best, and I think what I'd wish for Ahan is what I wish for you. God bless. थैंक यू सो मच सुनील शेट्टी जी. अब राजपाल यादव जी, आप इस रॉक स्टार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इनके बारे में क्या कहूँ. पहली बार इनको देखा तो 5 साल के थे गोविंद भाई, ये लंदन में, और ये 5 साल में से 13 साल के हो गए. और ये इनके अंदर 5 साल 6 साल की अंदर जो ऊर्जा थी और इनके अंदर जो इंथू है ना, वो पहले ही बताता था कि पता नहीं बप्पी दा ने इन पे क्या कृपा की है कि इनका पैसे भी पूरे, जैसे अन्ना ने बताया कि पूरा खानदान जो है, और इनको इतनी ब्लेसिंग मिली है. ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. और मुझे लगता है कि अब वो गुदड़ी का लाल से पता लग जाता है कि ये आगे क्या करने वाले हैं. आई थिंक ये वर्ल्ड के रॉक स्टार हैं. थैंक यू. सुनील शेट्टी जी, what advice you would like to give Rego B about his future or anything? I think I like to take advice. Oh. Yeah, कि ये उम्र में आप कैसे ऐसे मैनेज कर लेते. कॉन्फिडेंस, quality of voice, performance, you know. And I, like Dada said, I don't even I think he realized that the camera was playing, because even when we were together, जो गाए, हिंदी में गाए, अंग्रेजी में गाए, you know, he's genuinely talented. So my advice will always be कि those lights that hit you in the eye, you know, can blind you. So just make sure that you stay away from all that. Be a humble human being like your grandfather was and your uncle is. They both achieved a hell of a lot. Even your mama at a young age, Baba has achieved so much, but yet so humble. So I think this is that one legacy that you need to carry forward, you know, because there'll be a lot of people who will be probably as talented as you are, but the difference is going to be being a man, being a humble man, and that's the difference between a man and a boy. So if we have media, so media people, you can ask questions about our guest, about anything. एक्साइटेड हो, और इतना प्यारा कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल के आया, मैं ये हाँ? जानना चाहूँगा. ये जो कॉन्सेप्ट है, तो मैं बचपन से इंग्लिश गाने बहुत अच्छे गाते. दादू ने बोला था दैट व्हाई डोंट यू लाइक डू समथिंग डिफरेंट, बिकॉज ब्लाइंडिंग लाइट्स एक पॉप रॉक है, बट मैंने रेगे जो फ्यूजन है, जो बॉब मार्ली, मैं उनको देख के उनका जो स्टाइल है, उनको वो गाने को मिक्स करके हम लोगों ने रिक्रिएट किया है. So these songs are all different genres. One is rock, one is sad, one is emotional, one is pop, one is punk, Beatles, and I've done, so like suppose Blinding Lights is pop. I said it's reggae. Then yesterday it's soft. So I've done it more like a poppy soft. So like this concept is very unusual and it's very unique. And this all came from my granddad because he only told me to do it. Hi. This is for Sunil Sethi. Sunil Sethi, I'd like to ask you that आज की नई यंग जनरेशन के बारे में आपके क्या विचार हैं, और क्या उनको इतना काम मिल रहा है जितना वो डिजर्व करते हैं? 100%. You know, यंग जनरेशन के बारे में डिबेट बहुत होता है, लेकिन आई थिंक यंग जनरेशन जितने टैलेंटेड है, जितने ऑनेस्ट है, शायद हम कभी नहीं थे.
ऑफ कोर्स उन्हें नॉलेज और एक्सपीरियंस ज़्यादा है बिकॉज दे सी सो मच, बट सोशली बहुत कॉन्शियस भी है ये यंग जनरेशन। आई एम श्योर है वो अपने टैलेंट के साथ साथ सोशल रिफॉर्म करने की भी हमेशा कोशिश करेगा। आई मीन शायद पहले कभी ऐसे नहीं था कि बम्बई में बैठा हुआ बच्चा अगर टर्की में कुछ हो रहा है या सीरिया में कुछ हो रहा है तो उनकी कोशिश यही है कि सोशली वो उनको उनकी कितनी मदद कर सके, वो थॉट इनमें है। हम तो सिर्फ सोचते रहते थे कि वो कैसे हो सकता है, लेकिन ये बच्चे कर दिखा रहे हैं। सच्चाई उनमें कूट कूट के भरी हुई है। वो बाकी चीज़ें छल कपट उन्हें पता ही नहीं है क्या है। तो मैं इससे पहले भी जब गोविंद जी के साथ बैठा था तो मैं यही कह रहा था कि इनको लेगेसी अगर देनी चाहिए तो ऐसी क्लीन लेगेसी देनी चाहिए, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि घूस देना, ये करना, क्या करना है। तो मुझे 5 साल बाद 10 साल बाद एक ऐसा फ्यूचर दिख रहा है जहाँ थिंग्स आर गोइंग टू बी क्लीनर, स्मूदर, खुश रहना चाहते हैं, अपने लिए मी टाइम निकालना चाहते हैं। तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हैं इन बच्चों से सीखने के लिए, टैलेंट के अलावा भी, हाउ टू लिव लाइफ, हाउ टू बी हैप्पी, हाउ टू बी इंक्लूसिव, how to spread love or that positive energy, और इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि बच्चों को म्यूज़िक में, स्पोर्ट में, आउटडोर्स में इन्वॉल्व रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो कभी कभी खतरनाक भी हो सकता है। जितना नॉलेज के लिए अच्छा है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि आप हर चीज़ पे पाबंदी है। दारू पे पाबंदी है, ड्रग्स पे पाबंदी है, ड्राइविंग पे पाबंदी है, इस पे पाबंदी है नहीं। 6 महीने के बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो हम उसके हाथ में फ़ोन दे देते या आईपैड दे देते, और वर्चुअल दुनिया में वो रह जाते हैं। जिनको वो जानते नहीं है उनकी बातें सुनने लगते हैं, जबकि इंसानों की बातें सुनना ज़रूरी है। आई थिंक म्यूजिशियंस लाइक दिस, स्पोर्ट्समैन विल ऑलवेज कम फॉरवर्ड एंड चेंज द वर्ल्ड। सर आज आप देखते हैं जो छोटे से बच्चे हैं, मैं तो यहाँ तक देखता हूँ बड़ी मुश्किल से 3-4 साल के बच्चे होंगे, उनको भी माँ बाप चाहते हैं कि वो सुनील शेट्टी बन जाए, राजपाल जी बन जाए, शाहरुख खान बन जाए। जो बचपन से ही प्रेशर आ रहा है सोशल मीडिया के कारण, इसको आप किस तरह से देखते हैं? बेसिक क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है ये, और इसके जवाब भी बड़ा मुश्किल है देना। लेकिन अगर ये छोटे बच्चे हैं तो हम सब बड़े बच्चे हैं। वी आर लकीएस्ट पीपल इन दिस अर्थ कि हम लोगों ने 3 जनरेशन का पिछले 20 साल में, क्योंकि हमने अब चिट्ठी पत्री का भी जमाना देखा, उसके बाद में हमने पेजर का भी जमाना देखा, उसके बाद मोबाइल का भी जमाना देखा, और उसके बाद सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, दिस होल वर्ल्ड बिकम स्मॉल विलेज। उसमें करोड़ों साइट्स हैं। चुनाव बहुत जरूरी है, और हर आदमी ये आज की, जैसे अन्ना से बात हो रही कि स्टार्टअप का जमाना है, और स्टार्टअप में सबको स्टार्ट करना है और सबको दौड़ना है इस रेस में। लेकिन आपको चुनाव बहुत जरूरी है कि आपको सिलेक्ट क्या करना है, और उस सिलेक्शन में आप कितने डेडिकेटेड हैं, कितने पैशनेट हैं, कितने आपके अंदर हार्ड वर्क करने की क्वालिटी है। मैं तो ये कह रहा हूं कि सब आगे बढ़ें, खूब सब सफल हो, रेगो खूब सफल हो, लेकिन इनको जो भी सफलता मिले उसको पचाने की शक्ति जरूर मिले, क्योंकि ये दुनिया ऐसी है कि जितने साधक होते हैं उतने ही फिर आगे पीछे बाधक हो जाते हैं। तो साधकों और बाधकों के बीच में बैलेंस बना के चलिए, और जितना भी अच्छे मन से प्योरिटी के साथ कर पाइए करते जाइए, और बाकी चिंता मत करिए, क्योंकि चिंता करने के चक्कर में प्रेशर ज्यादा होता है। कोई भी बैट्समैन हो, कल सेंचुरी मारी है, आज सुबह से पहली बॉल से उसका एग्जाम है। तो एवरी डे इज वर्किंग डे, एवरी डे इज बिगिनिंग डे, एवरी डे इज न्यू डे। हर न्यू डे का ऐसे स्वागत करिए जैसे आप बच्चे ही हो। सुनील शेट्टी सर से मेरा सवाल है, सर एक वक्त हुआ करता था, हर माँ बाप चाहता था मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन कहीं ना कहीं अब लोग है ना, बड़े पर्दे पर या टेलीविजन कहें या मोबाइल कहें, उसके ऊपर काफी आकर्षित हो रहे हैं। हर कोई चाहता है मेरा बच्चा स्टार बने, कहीं ना कहीं बॉलीवुड से जुड़े, एक्टिंग से जुड़े, ग्लैमर से जुड़े। आपको लगता नहीं क्या जो देश की तरक्की है, जहां हमको डॉक्टर्स, लॉयर्स, साइंटिस्ट पैदा करना है, मोड़ हो रहा है, कहीं ना कहीं विजन घूम रहा है हमारा? बिल्कुल नहीं सर। स्टार्टअप की दुनिया है, टेक की दुनिया है, साइंस की दुनिया है, और उसी तरह लोग बढ़ रहे हैं। आप क्योंकि इस इंडस्ट्री से जुड़े, आपको सब एक्टर्स और सिंगर और डांसर ही दिख रहे हैं। लेकिन मैं जब दुनिया घूमता हूँ तो मुझे, यूनिवर्सिटी जाता हूँ तो मुझे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और
जिससे लोग खुश होते हैं। माँ बाप बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन बच्चा क्या चाहता है ये जानना बहुत जरूरी है। एक बार हम जान लिए कि बच्चा क्या चाहता है और उसकी खुशी पर हम ध्यान दें और उसे एनकरेज करें, तो वैसे ही रहना चाहिए। पहली बात तो हम माँ बाप को सोचना बंद कर देना चाहिए कि मेरा बेटा या बेटी क्या चाहता है, को क्या बनना चाहिए। उन्हें ये देखना चाहिए कि मेरा बेटा और बेटी चाहते क्या है, खुश कैसे रहेंगे, एक दूसरे को साथ लेकर कैसे चलेंगे। तो आई थिंक ऑल प्रोफेशनल्स आर गुड, ऑल प्रोफेशंस आर गुड, एंड आई थिंक भारत वो प्रोग्रेस कर रहा है, हर डिपार्टमेंट में वो प्रोग्रेस हो रहा है। शायद पिछले डेकेड में जितना प्रोग्रेस दुनिया ने नहीं किया है, भारत ने हर क्षेत्र में किया हुआ है। और हर छोटा जो काम, जो पहले लोग छोटा ब्ला 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 कहते थे, वो आज ब्ला 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 नहीं रहा, वो एक प्रोफेशन बना हुआ है। घर चलाना सबसे इम्पोर्टेंट, रिस्पेक्ट रखना सबसे इम्पोर्टेंट। आई थिंक द वे इंडिया इज मूविंग बहुत ही खूबसूरत है, एंड आई ओनली विश इट इवन मोर पेस। राजपाल जी, जैसे आपने कहा था कि हर एक में एक बच्चा होता है और आपने भी बच्चे की बात ही की, जब तक अपना दिल जवान है हम बच्चे ही है। कल अगर इलू इलू वाला दिन है, एक्चुअली वैलेंटाइन डे है, आज भी उस पर कितना आप यकीन मतलब मनाते हो? अन्ना, आपसे भी जानना चाहेंगे, whoever wants to know। मैं तो चाहता हूँ कि प्यार बरसता रहे, चाहे माँ बाप हों, चाहे बच्चे हों, चाहे जिनके बच्चे बूढ़े नौजवान, सबके बीच में हर दिन जो है वैलेंटाइन डे हो, 365 दिन वैलेंटाइन डे हो, और उसमें एक दूसरे को रोज हक करें, रोज विश करें। जैसा अन्ना ने बोला कि बगैर किसी प्रेशर के, क्योंकि एवरीडे लर्निंग डे, हम भी रोज सीख रहे हैं, हम भी अपग्रेड होने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें ये लगता है कि उसमें बोलते हैं ना कि आत्मविश्वास, परिश्रम, प्यार सफलता की कुंजी है। जो भी आपका कॉन्फिडेंट है, जो भी आप कॉन्फिडेंस से काम करते हैं, हार्ड वर्क से करते हैं, लेकिन लव हर चीज में विद्यमान रहे। लव बहुत जरूरी, क्योंकि आज पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा सिचुएशन ऐसी है कि सबको आगे बढ़ना है। और इसमें प्रेशर मुक्त होके प्यार के साथ जो काम करिए, सबका स्वागत करिए और हर दिन प्यार बरसाइए, हर दिन प्यार बरसाइए। Yeah, क्योंकि Valentine for me is not about a boy and a girl. Valentine is about somebody you love. It could be your pet, it could be your family. So Valentine, जैसे राजपाल ने कहा, Valentine's Day सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं हम भूल गए प्यार का इजहार भी करना और प्यार को सेलिब्रेट करना। So I think it could be a love for your country, it could be love for a sport, but I think the whole meaning is कि कल से शुरू कीजिए और अगले वैलेंटाइन तक वो प्यार बरकरार रखना। You know, that for me is Valentine, and that's why, yes, I do believe in Valentine, but for love and not for just two individuals, and a man or a woman, and a couple.